it may appear to you unjustified on the grounds of moral, ethical, social, cultural, whatever. Change the ground ना, make it immoral. Now this sense makes sense. जब आप देखोगे पढ़ोगे, ओह स्विगी में रिलेटेड प्रोडक्ट वहीं पे आते हो साइड में, कितना इजी हो जाता है. अरे प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं ना, किसी वर्टिकल का है ही नहीं. इट्स अ लैटरल स्किल, इट्स अ बेंड ऑफ माइंड. फर्स्ट प्रिंसिपल्स, माय फेवरेट वर्ड, फर्स्ट प्रिंसिपल्स. So over there, what was the basic work that you were doing? What are the major challenges that you faced? Or because you were coming from an engineering background. So this was the biggest challenge, the domain which we say, Okay. even in product also. Domain is like in content creation, like what we are doing. Content is the king, right? Similarly, in product also, whatever product आप कब बना रहे हैं, this is the content, right? So domain is important. वो आप लेके जाओ कहीं भी चले जाओ. So have curiosity, be able to structure, understand, grasp thing in a broader, smaller, every context, structured thinking, clear communication, empathy, user side of thing, being able to shift your chair every now and then, open, flexible. I'm just throwing words. Something around this is what is product management. Hello guys, I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become better versions of themselves. And I also help students prepare for their competitive exams in finance like CFA, FR, and SCI. And as a part of that journey, we help students by talking to industry people, understanding what are the different roles, opportunities are there in the market. And as such, I'm talking to one of the industry expert, Gaurav, and our conversation is going to be more or less related to his experience in the industry and also on what does a product manager actually does. And this conversation is going to be a mix of Hindi and English. Okay. So Gaurav, first of all, thank you very much. Thank you so much for having me. Taking out time. For the audience, अगर आप एक brief दे दो, आपने start से यहाँ तक आप जो पहुँचे, एक brief summary. Sure. So I will try to make it brief because the journey is not so linear as I would want it to. But yeah, it's I've been dabbling across many things. So primarily, right now what I'm doing is my role is a senior product manager into fintech space, you can say. Okay. So it's been like more than around 3 years now. I'm doing that. Prior to that, I was domain was into investment banking only. So I started my journey. Of course, I'm an engineer, so I started off as a software developer and all. But I realized very early that this is primarily not where I should be because I am not able to deliver the value that this profession demands. So I tried switching, and landed myself into one of the top investment banks of the world. And I started as an analyst, financial analyst. Okay. Spent like 3-4 years there, became an associate. Then I, in the same space, switched the company. So there was one of our directors. He offered me a role in his company. He was a founding member, and there also pretty much the job was same, investment banking space. And but while working there, my team was the implementation team. You implement the products, the financial investment banking analytics product. That's where something started clicking inside me. कि यार मुझे है ना चीज़ें कैसे चलती हैं, इसको कैसे बनाते हैं, यूजर को क्या चाहिए. दैट एक्साइटेड मी. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड probably I should change my lane and be on the product side of things. And because this 5 to 6 years developed a good base of financial knowledge, I thought maybe if product, because product is everywhere, right? So product is the mindset that I have, and the industry, it's better to have something I know of, right? So I switched into fintech. That's why I took the transition, and here I am with the senior product manager. Okay, exciting. Yeah. Now, when you started with the, we'll first talk about the analytic side that you started out with. So over there, what was the basic work that you were doing? What are the major challenges that you faced? Or because you were coming from an engineering background. Correct. And you Absolutely. mentioned about the investment banking. So what was the challenge that you were facing also? Absolutely pinpointed it. So this was the biggest challenge, the domain which we say, even in product also. Domain is like in content creation, like what we are doing. Content is the king, right? Similarly, in product also, whatever product आप कब बना रहे हैं, this is the content, right? So domain is important. So for me, the biggest challenge was domain. I'm coming from a STEM background, and I'm an engineer. मुझे finance नहीं आता. Let's be honest. Opportunity I was given, मेरा ये था कि I have the challenge, understand the domain, have that capability to be able to understand the semantics of this particular space, the jargons and everything. So initial 1.5 years, and thanks to good companies who give you that space along with the work, right? So you have that exposure, you have that senior leadership, you have those mentors who guide you, because they also उन्होंने hire किया, they know your resume. So the ecosystem was there to help somebody who wants to switch domain but has the necessary skill set. So domain was the challenge, and the kind of work that you asked. So the kind of work I was doing, my role was an analyst.
and I was into portfolio management, primarily into risk management. Okay. So my role was to use the analytics tools, deal with data, because the engineering background helps you with analytics. That is the Yes, skill yes. set, that is the common fabric that any industry picks from engineers. जो हम कहते हैं ना engineer Yes, कहीं भी जा yes, yes. सकते हैं. That's correct. That is the fabric. Right. That bend of mind, that analytical mindset, and being good with numbers. Because if it's business, numbers are going to be there. If it's business, because we work in for-profit organization, be it any company, Right. it has to be business, right? So that's the reason engineers बोलते हैं ना उनका काम निकल जाता है. उसके बाद it's up to you, आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं. You should know what, जैसे मैंने बोला मुझे पता था डोमेन इज वेयर आई शुड फोकस, ये स्किल सेट है, ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगे. तो कैसे किया डोमेन वाला कहाँ पे पकड़ा? प्योरली जस्ट स्टडी. अब मेरा ऐसा है कि दिस पर्सनल टू मी, बिकॉज बाई नेचर आई एम वेरी इंक्विजिटिव गाय. मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है. अगर मैं अभी यहाँ भी देख रहा हूँ, मैंने 4 चीजें देखी जो आपको पॉडकास्ट में पूछने वाला हूँ कि गणेश ये क्या है, वो क्या है. मैंने आपका ऑफिस देखा, वी वर स्टिल टॉकिंग, राइट? अच्छी चीज है. आई नो कितनी अच्छी चीज है, बट दैट हेल्प्स मी. हाँ. जैसे बोलते हैं ना सिंगल मेट्रिक नहीं, वन साइज फिट ऑल नहीं होता. यू शुड नो आपका स्ट्रेंथ क्या है. So मुझे पता है कि मुझे क्यूरियोसिटी बनानी नहीं पड़ती, वो मेरे पास है. तो मुझे बनाना क्या पड़ता है? फ्रेमवर्क. मुझे बनाना पड़ता है प्रोसेस. बिकॉज आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोड में इट्स सो इजी, आप पागल हो जाओगे. आपको नहीं पता चल रहा, आप बहुत अंदर जाओ, इसकी जरूरत नहीं है. राइट. तो ये जो चीज़ है ना, टू नो वेयर टू गो, हाउ टू गो, वेयर टू स्टॉप, ये आपको बिजनेस, ये आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, वर्क सिखाता है. अगर मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे 10 घंटे बात को मुझे समझेगा कि अब थिंक लाइक पॉडकास्ट, उसको कैसे किया जाता है, ये आपने कर रखा है. थिंक लाइक दैट. सो चैलेंज डोमेन का मैंने कैसे हैंडल किया था? एक तो है कि प्योरली स्टडी. सेकंड एक होता है कि आप स्टडी करते हो. मेरे हिसाब से दैट्स गुड. आई अप्रिशिएट द हार्ड वर्क, दैट्स नॉट स्मार्ट वर्क. अब क्या पढ़ रहे हो, वैलिडेट करो. एंड दिस टाइज टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो आज मैं करता हूँ, जिसको हम कहते हैं ना अजाइल मेथोडोलॉजी, टेस्टिंग, फास्ट टेस्टिंग. आप देखो आपके ना जो पिलर्स है ना, आपको बचपन से मिलता है. यू शुड हैव दैट लेंस कि ये मैंने कहीं देखा है, ये एक फ्रेमवर्क है. कीप थिंग्स वेरी ऑब्जेक्टिव. उसको हर चीज को एक प्रोसेस फ्रेमवर्क की तरह रखो. तो एक माइंड, ये प्रोडक्ट माइंडसेट, ये इंजीनियरिंग माइंडसेट भी है ना एक्चुअली. माइंडसेट. ओके. सो तब मुझे लगा कि यार अगर मैं 4 कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, क्या पता मैंने जो समझा वही है. मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग में कुछ तो बैठा. आई वैलिडेट. कैसे वैलिडेट किया? पहले तो जो पीयर्स हैं, Okay. सीनियर्स है, और नेचर ऑफ द वर्क. अगर मैं कोई लेट्स से मैं रिस्क रिपोर्ट बना रहा हूँ, एलोकेशन सिलेक्शंस देख रहा हूँ, मैं एसेट क्लासेस के अक्रॉस जा रहा हूँ, तो मुझे क्या पढ़ना है? द जार्गन्स. एसेट क्लास का, इक्विटीज क्या है, बॉन्ड क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स के कितने टाइप्स हैं, प्राइमरी 4 क्यों होते हैं. सो ऐसे पढ़ लिया. अब ये यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, इससे इसका क्या वास्ता है? यहाँ पढ़ने से बेटर पूछ लो, ठीक है, डेन आउट कर रहे हैं. ये आपको प्रैक्टिकल और बोलते हैं ना रियल नॉलेज देंगे, हाउ इट वर्क्स. राइट. ओके. ठीक है, मैंने इंजन पढ़ लिया, तो पढ़ लिया कि सीसी को क्यों कहते हैं, 100 सीसी क्या होती है, 1000 सीसी, 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर. अब उसके बाद जब मेरे को इंजन खोलना है, अब बुक में पढ़ो, मैकेनिक को बोलो, वो दिखाएगा ना, आपको जल्दी समझो. बराबर. बेसिक. बट हाँ, आपने कोई थ्योरी पढ़ा, फिर आपने उसको वैलिडेट भी किया. तो मैं साथ में, दैट्स हाउ आई डेल्ट, और वो मेरे लिए जल्दी हो गया. मुझे भी समझा कि हाँ यार, इतने टाइम में काफी ढंग का काम कर लिया अपन ने. मतलब ओके. तो मतलब एक फेयर अंडरस्टैंडिंग आ गई थी उसमें. हाँ. एंड उसके बाद तो जैसे टाइम गुजरता गया, सो माय रोल वाज, द नेचर ऑफ द वर्क में बात कर रहे थे, वाज टू जनरेट रिपोर्ट्स, लुक अक्रॉस. तो हमारे क्लाइंट हुआ करते थे, इट वाज अ यूएस बेस्ड, तो वहाँ के बड़े बड़े पेंशन फंड्स मंगलोर, सो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड एसेट ओनर्स बोथ वर आवर क्लाइंट्स. तो माय रोल वाज, मेरा पोजीशनिंग ऐसा था, हमको क्लाइंट दिए जाते थे. So our role involved a lot of client interaction also. Okay. So we were the face of the company. So let's, आपने इस कंपनी का प्रोडक्ट लिया, बराबर. You know me कि यार ये ABC कंपनी का गौरव इस बंदा है, इसको रखा है, कुछ भी होगा मुझसे बात करोगे. So वहाँ से पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? एक तो आप जो ग्राउंड काम कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, नंबर्स देख रहे हो, पढ़ रहे हो, एनालिटिक्स कर रहे हो, मॉडल्स भी देख रहे हो कि ऑप्शंस की वैल्यूएशन कैसे होती है, फ्यूचर्स की कैसे होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है. दैट इज वन थिंग. वो पढ़ा, अप्लाई किया, रिपोर्ट बनाया, वैलिडेट किया. One part is done. Second part, dealing with client. उनको एक comfort देना. Both in client management, stakeholder management, all those fancy words. वो second part. That was our KRA also. कि client को retain भी करना है. So एक छोटा सीट वो भी था. अब इसके बाद ये सब कुछ हो रहा product के around. I'm just giving you product कहाँ से, मेरे को भी नहीं realize हुआ. When I look in hindsight तो मुझे समझता हूँ, ओह ये था influence. वो analytics product आप वो client को product दे वाला रहे थे. mindset था ना. तो जब वो client बोलता था ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, मैं जाके बोलता था हमारे product तो नहीं है. मुझे लगता क्यों नहीं है. That's why I talked to the product team, the engineering team. वो अपना कुछ बताते थे, वो अपने पेन पॉइंट्स बताते, चैलेंजेस बताते थे. एक चीज होता मैं सुनता, हाँ नहीं ऐसा नहीं. एक होता ठीक है ना, उसको तो पता है नहीं, उसने तो बताई है तुम्हें. तुम ये फिगर आउट करो क्यों नहीं है. क्यों नहीं है. यस. भले तुम नहीं बना रहे हो, वो आपको बताएगा क्यों नहीं है. इसने पूछा क्यों नहीं है, उसने बताया क्यों नहीं है.
आप थोड़ी मेहनत तो करो कि ऐसा क्या है, दैट्स वेयर यू बोलते हैं ना, आप क्रैक्स के अंदर जाते हो। वो जो क्यूरियोसिटी है, मेरे को किसी ने नहीं बोला था रिसर्च करने, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भाई देखते हैं तो ना क्या वहां से है। आपका क्लाइंट एंगेजमेंट अच्छा हो गया वैसे। हाँ क्लाइंट, और ये थोड़ी कॉलेज में थी, सो इन कॉलेज में मैं कल्चरल एक्टिविटीज एंड वो जीएसएस ओके वाला था, तो ओके वो ओके फ्लेयर तो था, यहाँ पे एक मौका और मिल गया। सो ओके। दैट वाज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। तो यहाँ पे आई बिल्ड द फाइनेंस का बेस। तो वो एनालिटिक्स के बाद आपने एक और बुटीक फर्म ज्वाइन किया था ना? इट वाज नॉट, इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म। अच्छा। सो हाँ, वही कॉलेज के बाद बुटीक में आई स्पेंड नहीं, लाइक 4 आफ्टर मंथ्स। दिस एनालिटिक्स फर्म हाँ यू मूव हाँ, टू द अनदर, अपने आपके बॉस ने आपको पुश किया था? इट वाज आल्सो अ गुड फर्म, सो बिग फर्म। सो ओके। वहाँ पे एक्चुअली ऐसा था कि दैट फर्म वांटेड टू हैव दिस कंपनी जो टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंक में आता है एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर वन ऑफ द सर्विसेज लाइन, एज अ ओके बिजनेस एंगल। ओके। तो मुझे इसलिए लिया गया था, तो उन्होंने देखा होगा कि यार ये बंदा 10 लोग से बात कर सकता है, ही कैन ओके होल्ड कॉन्वर्जेशन, काम निकाल सकता है। बराबर। तो उन्होंने बोला इसको डालते हैं। एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, आप आईटी इंडस्ट्री में भी देखोगे, क्रिएटिंग द बेंच, हम्म। बिल्डिंग दैट हाँ हाँ रिलेशनशिप। हाँ, राइट। आपने मुझे एक रिसोर्स या एक लाइन ऑफ सर्विस दी है, तो उसको मैं 4 या 4 करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनूंगा, फिर वो ओडीसी के लेवल तक लेके जाऊंगा, थिंग्स लाइक दैट। सो दैट्स अ प्योरली बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। सो ओके, ही तो वो देखा चोज आपने। मी, आई वाज लकी इनफ। तो उसके बाद यहाँ से तो नेचर ऑफ द, बोलते हैं ना, जगह और काम तो सेम ही था, इट वाज जस्ट द ओके, वो वहां कॉन्टेक्स्ट पे बदल थोड़ा गया। सा अब क्लाइंट ज्यादा फेसिंग हो हाँ, गया क्लाइंट के होगा। साथ देन आई गॉट इन्वॉल्व इनटू द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, ओके। कि यार ये लोग क्यों ही करते हैं, प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं, ये समझा सर्विसेज लाइन क्या होती है। समझा। इसमें इतना नथिंग टू डू विद फाइनेंस ओनली, किसी भी प्रोडक्ट में हो सकता है ना। राइट। सो वो वहाँ से एक्सपीरियंस मिला। एंड वाइल आई वाज वर्किंग हियर, तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरी टीम चेंज हो गई थी, फ्रॉम अ एनालिस्ट एंड एसोसिएट तक बन गया था मैं, क्लाइंट फेसिंग रोल। आई बिकेम आपका प्रोडक्ट बिकने के पहले वाला स्टेज। यू बॉट अ प्रोडक्ट फ्रॉम मी। अब ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है ना जो हम डायरेक्टली बोलते हैं, रेडी टू यूज होता है, तो कुछ नीश प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेते हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज नहीं कर सकते जब तक आपको ट्रेड के बेसिक्स ना पता हो, आपने खुद ट्रेड बराबर। ना किया हो, है ना। आपको एल्गोरिथम, टेक्निकल एनालिसिस, ऑल दो स्टफ को पता होनी चाहिए, प्रीरिक्विजिट, इट्स अ नीश स्किल सेट। सो इफ यू हैव मनी, इफ यू आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वट एवर, यू डोंट हैव टाइम ऑल्सो, आपके पास अगर आता भी होगा, यू वोंट डू इट, यू विल कीप अ गाय हु विल डू इट। राइट। अब उसमें एक अलग एंगल आता है सर्विस का, विच इज कि मैनेज सर्विसेज को कहा जाता है। तो अगर मैंने गणेश से एक प्रोडक्ट लिया है, गणेश इज अ, बोलता है ना, यही प्रोडक्ट मैं स्पेशलाइज करते हैं, उनका एक प्रोडक्ट मैंने ले लिया, तो उन्होंने बोला, तो गणेश क्या करेंगे, गणेश बोलेंगे गौरव ये प्रोडक्ट चलाना भी तो ऐसा नहीं है ना, कोई भी चला सकता है, रिक्वेस्ट ऑर्डर्स कर, मैं आपको एक बंदा भी बंदा भी दूंगा। देता हूँ, हाँ, दिस जैसे सर्विसेज आईटी एंगल, आईटी कंपनीज भी इसमें दो बहुत रेवेन्यू स्ट्रीम आते हैं। एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट भी। आता है जो लाइसेंस और ईयरली पे होता है, एक ही होता है जो आपका मंथली चर्न रेट बढ़ाता है, जो पीएनएल पे, तो ऑल दिस फाइनेंस वाला पार्ट आ जाता है। बराबर। एंड इट बोलते हैं ना, स्टिकीनेस बढ़ती है। क्लाइंट से आप आप इंटरेक्ट करते आप रोज रहते हो, क्लाइंट से बात करोगे तो आपको पता चलेगा यार उसको, यार उसको लेजर में भी रोज का प्रॉब्लम है, तो ये क्या इसके मेरे लिए पास कौन लेजर का प्रोडक्ट? प्रोडक्ट है, और नहीं तो क्या मैं बना सकता हूँ, क्या इंडस्ट्री में इसकी जरूरत है, तो प्रोडक्ट माइंडसेट हिट्स ओके ओके, इंटरेस्टिंग। ना। एंड देन फिर वहां से अभी आप करंट हाँ, रोल तो पे जब मैं वहाँ पे करने लगा, तो इम्प्लीमेंटेशन टीम कहते हैं। सो आपने भेज दिया, तो मैं जब आपको प्रोडक्ट में ऑनबोर्ड करता हूँ, तो इस प्रोडक्ट को पूरा सेट करता हूँ, और उस दौरान मुझे, बोलते हैं ना, आई एम इनटू द क्रैक्स, मुझे ऑन ग्राउंड पता है आपको कितनी और प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बराबर। दैट्स वेयर मेरे को लगा कि नहीं, आई एम द प्रोडक्ट जो, आई फेल्ट लाइक कि आई शुड बी वर्किंग ऑन दैट साइड ऑफ थिंग्स, क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, बिकॉज वो नेचुरली मुझे आता है, ओके। मुझे मजा आता है। मैं राइट। ये ढूंढते, बात करते 10 घंटे निकालते हुए मुझे पता नहीं चलेगा। So let's try that. That's the reason I changed my lane from being in the investment banking space, analyst, associate, टू द implementation प्रोडक्ट manager, साइड। to the product side. अभी अभी हमने आपकी जर्नी बात कर ली ना, जी। फॉर द ऑडियंस, इन द सिंपल लेमैन टर्म, एक प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है? कि बहुत बहुत जैसे हमने बात किया ना, बहुत ज्यादा Yeah. डिस्कशन है इसके ऊपर मार्केट में। As simple as this question is, I'm not sure मैं कैसे उसको, I'll try to put a structure around it. A product manager क्या करता है? Is as good as अगर एक रियल प्रोडक्ट मैनेजर है जिसको ओनरशिप है कि यू नीड टू गेट दिस प्रोडक्ट लाइव, ऐसा कोई काम नहीं इस प्रोडक्ट से जो उसे ना करना पड़े। दैट इज अ सिंगल लाइन डेफिनेशन। ओके। नाउ कमिंग टू, बोलते हैं, इफ आई एम टू स्ट्रक्चर अ थियोरेटिकल आंसर, अ प्रोडक्ट मैनेजर इज, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फिनटेक का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, हाँ। जैसे लेंडिंग का, इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का, वट एवर, तो आपको कोई आके मुझसे मिला है कि गौरव इज द प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपको लगे ओ ये बंदा है जिसका ब्रेन चाइल्ड यही सब लेके, नो, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल। आई एम द गाय हु अलाइंस विद बिजनेस का विजन। बिजनेस हैज आइडेंटिफाइड मी कि दिस गाय possesses दैट स्किल सेट, जो जो मेरे दिमाग में है उसको रियल करने के लिए। दैट इज माई जॉब रोल। बराबर। This is not my product. I'm not the CEO. I don't call shots. I'm not the owner. I am the owner of
मेकिंग श्योर जो आपके दिमाग में है उसको मैं रियल करके दिखाऊंगा. दैट इज वेयर माई स्किल्स, दैट इज वेयर इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट. आप कभी सोचते हो कि वाई इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट? अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ सो आई शुड बी Developer. प्रोडक्ट क्रिएटर ना, हाँ हाँ हाँ. product CEO, product manufacturer. Right. That should be the right word, no? Every word has meaning. If it says management, so basically let's do pure English. What is product management? Art of managing the product. Am I creating the product? No. इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बना रहा हूँ, but that is primarily what is expected. ठीक है. So product manager क्या करता है? Product manager एक काम करता है. एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए टेक लगेगा, डेटा लगेगा, इंफ्रा लगेगा, लीगल लगेगा, कंप्लायंस लगेगा, इन्फोसेक लगेगा, सिक्योरिटी लगेगी, पैसा लगेगा, मार्केटिंग लगेगा, ब्रांडिंग लगेगा, सेलिंग लगेगा, तब ये प्रोडक्ट पहुंचेगा. इस बंदे को हर लेवल पे काम करना है. सो इस बंदे से ये एक्सपेक्टेड है ये हर लेवल, हर किस्म, हर स्किल के सेट के आदमी के साथ बात कर सके, ऑन द सेम पेज, अलाइन कर सके. अलाइन इज द की वर्ड. सो प्रोडक्ट मैनेजर इज मोर लाइक अ ग्लू एंड कंपास जैसे कहते हैं. Glue and compass. So another analogy, I am the captain ship. मतलब शिप का मैं कैप्टन हूँ. समझा. मैं नहीं चला रहा हूँ, मतलब चला नहीं रहा हूँ. समझा. डायरेक्शन कोई और दे रहा है, आप डायरेक्शन आप दे रहे हो लेकिन कोई शिप चला को पहुंचाने मेरी जिम्मेदारी है. बिकॉज आई अंडरस्टैंड सी, आई अंडरस्टैंड इंजन, में समझ में आता है. बट मुझे छोड़ दो तो शायद नहीं चला पाऊंगा. कोड मेरे को समझ आता है, मैं कोड करता नहीं. बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट का, प्राइमरली ये टेक प्रोडक्ट्स ही होते हैं. जैसे अभी Yes, fintech the में आप space काम I am, करते हो. yeah, it's fintech. Okay. तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर? अगर कोई नया पर्सन भी काम इस इंडस्ट्री को देख, इस रोल को देखता है, तो उसको क्या पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्ट मैनेजर? I would not say कि I cannot pinpoint one challenge. At least I cannot. So there's not one or two or three standard thematic challenges that come across in this particular role. No, absolutely not. वो जो कहते हैं सुनने को बड़ा ये जवानी है दीवाना टाइप्स लगता है कि एवरी डे इज अ चैलेंज. आप करके देखो सर, कोई भी करके देखो. एनी बिजनेस गाय वुड टेल यू दिस. सो चैलेंजेस अगर मैं आपको बताऊं, सो आइडियली चैलेंज यही है जो मैंने आपको बताया, ग्लू एंड कंपास. द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ यू इज टू मैनेज एक्सपेक्टेशन, make sure we are moving in the right direction, and third important, trade-offs. Trade-offs can be at a money level, at a person to person conflict management level, ठीक है, at a tech level, or at you with the stakeholder level or the client level. इसका एक एग्जांपल दो ना. सो मैं आता हूँ, मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है भाई, गौरव आप खड़े हो, पूरी फौज है पीछे, आप फेस हो, आपको मेक श्योर करना है ये यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए. अब पीछे 50 चीज़ें होंगी, 50 चीजें होनी ही होनी है. The multiple things moving simultaneously. I have to make sure they move in a synergy. So my challenge is to make sure there is more of synergy, less of conflict. So what I have to do? टेक वाला बंदा आके, मैं डेली का बता रहा हूँ, टेक वाला आके बोले अरे ये कोड नहीं चल रहा, इसका डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा बिकॉज डेटा साइड सही नहीं. डेटा पे डाल दिया, मैं डेटा के क्या हो गया तेरे को, मेरा ये नहीं बिकॉज AWS का ये सीन है, इंफ्रा वाला का, इंफ्रा का प्रॉब्लम है. फाइन, इंफ्रा को पूछूंगा, सब्सक्रिप्शन नहीं होता, कॉस्ट सेंटर स्पॉन्सर ने नहीं किया है. सो आई हैव टू टॉक टू एवरीबडी. मैं टेक को समझा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें सिनर्जी, आपको डेटा नहीं मिलता, व्हाट एल्स कैन आई डू. मुझे हमेशा एक सोल्यूशन के साथ जाना है. सोल्यूशन मेरे को उसको उसके लेवल पे बात करना है. मैं अगर एक डेवलपर को बोलता हूँ स्पॉन्सर ने नहीं दिया, उसको क्या करना है? आई हैव टू बी एट ईच लेवल on the same page and being able to make sense. This is interesting. Yes, I have to talk their language. ठीक है. सो आई नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. द बिगेस्ट चैलेंज अगर आप पूछ रहे हो, चैलेंज ये है टू मेक श्योर एवरीथिंग गोज स्मूथ. दैट इज द चैलेंज. उसके सब पार्ट्स में कुछ भी उठ सकता है, कल ये उड़ेगा, कल वो उड़ेगा, सो ओके, बट दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज उससे क्या होता है, आपको यू आर नॉट डीप इन एनीथिंग बट यू नो एवरीथिंग. बराबर. एंड दैट्स वेयर अब कोई प्रोडक्ट मैनेजर चाहे तो किधर एक जगह जा सकता है. अगर वो टेक बैकग्राउंड से आता है, इंजीनियर है जिसकी कोडिंग पढ़ रखी है, मजा आने लगेगा, वो टेक लीड बन जाएगा, सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन जाएगा, कल को जाके एंटरप्राइज लेवल टेक्निकल डिस्कशंस करेगा. किसी को इंफ्रा में इंटरेस्ट आ गया तो वो क्लाउड आर्किटेक्ट बन जाएगा. ओके. ऐसे बन जाएगा. So, हर जगह से देयर मल्टीपल ऑप्शंस. सो प्रोडक्ट मैनेजर का काम ये है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि थिंग्स आर गोइंग स्मूथ इन द राइट डायरेक्शन एंड वी विल मीट व्हाट आवर विजन इज. क्योंकि काम के दौरान ये भूलना कि हम क्यों कर रहे थे, सो इजी. मैंने एक फिनटेक प्रोडक्ट बनाया था, आप एक ऐप खोलो सर, डिटेल डालो, आपको लोन घर पे आ जाएगा. सिंपल ऐप है, ठीक है, साउंड बहुत सिंपल करता है, इट्स सो इजी. मैंने अक्सर जो मैं इंटरव्यूज लेता सब देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम फीचर में घुस जाते हैं सर. वी आर सो डीप इनटू, तो बोलते हैं ना, मैं जब ये फ्लोर बना रहा हूँ तो मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं फ्लोर क्यों बना रहा हूँ, क्यों बनाया था मैंने फ्लोर. मुझसे कहा गया था एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए, चमकना चाहिए, फिसलना चाहिए, इतना क्लीन कांच होना चाहिए,
ठीक है, मैं उस कोने का ना वो कलर शेड मैच, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स अ ट्रेड ऑफ। Okay. जो मैं बात करूँ ट्रेड ऑफ, समझा समझा। कब तो क्या जो जरूरी है, बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विजन नहीं भूलना है। वो बंदा भूल सकता है जो काम कर रहा है, क्योंकि उसको विजन से अलाइनमेंट है, आपका विजन का ओनरशिप। ओके समझा। तो यू हैव टू ड्राइव यस, आई हैव टू एवरीबॉडी, ड्राइव। वो कैप्टन जो शिप का ना, दैट्स अ गुड एनालॉजी आई वुड से, आई जस्ट केम अप विद इट। तो अभी जैसे या मार्केट में कैसा है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स बहुत ज्यादा हाई पेइंग है, या तो वो कितना सच है कितना सच गलत है? सच तो है, हाँ, इट्स नॉट कम्प्लीटली लाई, ठीक है। और वो क्यों है? हाँ, अब एक काम करते हैं, हम साथ में एक्सरसाइज कर लेते हैं, बिकॉज मेरी आदत हो गई है ना कस्टमर्स की आदत। तो लेट्स ट्राई टू दिस। मैं आपको एक डिफाइंड सेट ऑफ जेडी देता हूँ, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विथ एवरी लाइन ऑफ रूल्स और द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू होल्ड, देयर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। यू नो व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन, इफ यू डू दिस यू गेट दैट। ऐसे 10 इंस्ट्रक्शन है। हर एक इंस्ट्रक्शन के सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, मतलब आपको पैसे चाहिए ना, बराबर, corporate हाँ, business है। समझा, You have a clear set sequentially laid out to you, आपको क्या करना है और ये अचीव करना है। दिस इज हाउ माय एंड गोल लुक्स लाइक, ओके, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। एक अनदर जॉब डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे देयर इज अ, जिसको हम कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। गणेश, एक लैंडिंग ऐप इतना ऐसा बनाना है ना कि सो इजी हो, 3 क्लिक्स में मेरा लोन आ जाए। अगर आपको एक लोन ऐप बनाना है कि मैं ऐप खोलूँ और डिटेल डालूं, आई नो टेक्निकली इट इज गोइंग टू बी टफ। हर एंगल से हाँ, आप पैसे बैंक से लाओगे, जैसे पैसे आएंगे आरबीआई आ जाएगा, सेबी आ जाएगा, कंप्लायंस आएगा, लीगल आएगा। आप, मैं आपका पैन का डेटा ले रहा हूँ, सबसे पहले आरबीआई सेबी आएगा, डेटा गाइडलाइंस आ जाएंगे, डेटा ब्रीच आएगा, इन्फो से घुसेगा। 6 से 7 मतलब आप समझो सीएफओ, सीएलओ, इनसे आपको सब अप्रूवल अप्रूवल्स लेना। लेने पड़ेंगे। yes. अभी मैंने प्रोडक्ट पे गया भी नहीं। आपने वो स्ट्रक्चर ही सोचा है कि जब हाँ, डेटा आएगा तो हाँ, कैसे उसको। तो आप समझिए कि इसमें प्रॉब्लम है कि बोलते हैं नेविगेटिंग द एम्बिग्युइटी, जस्ट बोल्ड दिस लाइन, नेविगेटिंग द एम्बिग्युइटी दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर, आउट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, Okay. दैट इज योर स्किल। जावा लिखता हूँ, मेरा स्किल सेट जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, दैट इज माई स्किल सेट, आई कैन क्वांटिफाई एंड डिफाइन इट। प्रोडक्ट मैनेजर नहीं कर पाते, इसलिए वो हाई सैलरी so बढ़ why रही it's high paying, stakes are high. I'm not glorifying the role, to be honest, I'm not glorifying the role. अब एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है, वो जिस लेवल की बात कर रहा है वो मुझे नहीं समझ आएगी, बट वो एक पीस लगाएगा। वो बोलते हैं ना सोना, इसमें हीरा लगा रहा है मेरे कार में, हीरे की क्या वैल्यू है सर, बट जिसका काम है इस कार को बना के बेच के आना, जब कार ही नहीं रहेगा तो हीरा कहाँ लगाएगा। बराबर। और दूसरी चीज, जब कार में हीरा ही नहीं तो मेरा कार लेगा कौन। everything has its value, राइट। so but product managers, इसके लिए बोलते हैं ना, जो बहुत कॉमन डिबेट है, why the CXOs are getting paid so much, और हम सब वो फेसबुक व्हाट्सएप सब पे देखते हैं कि मजदूर है 10 घंटा काम करता है, आप कंप्यूटर के सामने 3 गुना कमाते हो। रिमेंबर, दिस इज माई पर्सनल एडवाइस, जस्ट बोलते हैं ना, ये एक मेरी एडवाइस ले लो आप लोग, आप लोगों को भी दुख या फिर दुख कम होगा। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अनजस्टिफाइड, it may appear to you unjustified on the grounds of moral, ethical, social, cultural, whatever. Change the ground, no? Make it immoral. Now this sense makes sense. समझा समझा, ओके। तो अगर आपको कोई जो भी हो रहा है वो जस्टिफाइड है आपकी नजरों में। कैपिटल मार्केट है ना, तो हम्म, कोई काम डिलीवर कर पा रहा है इसीलिए उसको इतना सैलरी मिल रहा है। अल्टीमेटली वही वैसे ही ड्राइव होता है वो आप चीज़। कोई भी इंडस्ट्री देख लो, हाँ। नथिंग, वी आर टॉकिंग एज लाइक थॉट लीडर्स, राइट। सो प्रोडक्ट मतलब मुझे प्रोडक्ट में से थोड़ा प्यार है, इसलिए आई कैन साउंड लिटिल बायस, प्लीज डू नॉट टेक माय वर्ड्स एज ग्लोरीफाइंग दिस पर्टिकुलर रोल, बट उसका मजा मुझे आता है, तो आपको दिख रहा होगा मेरे कॉन्वर्सेशन में। प्रोडक्ट थिंकिंग आपको ये जो मैंने बोला ना, आप मूवी देख लो, तीनों खान को सबसे ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं, उससे अच्छे एक्टर्स जिनको नहीं मिलते। इसका बहुत एक मैंने रिसेंटली देखा, आमिर खान ने बोला था ना, इट्स ऑल बिजनेस। अगर मैं अपने नाम पे 100 लोग को थिएटर में लाता हूँ, मुझे पैसे चाहिए ना। अग्रेड अग्रेड। एक्टिंग आएगा तब देखेगा ना, और एक बार देखेगा पसंद आएगा, दूसरी बार 100 आया तो फिर मैं लूंगा, 50 आएगा तो आप नाप दोगे ना, मैं लूंगा। सेम सेम। तो प्रोडक्ट में उसने डिलीवर कर दिया, उसके लिए उसने हो सकता है 100 से कर दिया हो या दिन रात मेहनत, उसका मैट्रिक सिंपल है। जो मैंने सोचा है, जो बिजनेस सोचा है, वो बिजनेस गोल मीट होना चाहिए। यू डू व्हाटएवर यू वांट, यू टेल मी व्हाट स्किल इज सेट चाहिए ये रोल के लिए, क्या स्किल सेट? नेविगेटिंग एम्बिग्विटी। एक तो होता है ये जो मैं स्किल सेट बता रहा हूँ, दीज आर लाइक, ये होनी चाहिए, दिस शुड बी इन योर बॉडी। बोलते ना, आपके अंदर होंगी तो आप काम निकालवा लेंगे, ऐसा वाला है। नेविगेटिंग द एम्बिग्विटी, बीइंग एबल टू ग्रास्प थिंग्स, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा, द फैंसी वर्ड्स व्हिच इज इन द रेज्यूमेस एंड द जेडीज एंड ऑल दोस कॉन्फ्रेंसेस, एंड द रियल वर्ड्स। बोलते हैं नेविगेटिंग मतलब कहीं अगर तुमको अकेले जंगल में छोड़ दे, तुम रास्ता लेके आ सकते हो बाहर, इतना कॉमन सेंस है, वही कहा जा रहा है। ओके, ठीक है।
दूसरा बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब ग्रास्प थिंग्स। आपसे कोई जब कोई बात करता है, मेरा सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुझे कुछ ऐसी चीज बताएगा जो उसके सेंटेंस का एक वर्ड मुझे नहीं समझा, बट आई शुड बी एबल टू आस्क राइट क्वेश्चंस। बोलता अरे वो क्या हो गया ना, वो सर्वर साइड का वो लाइब्रेरी अपलोड नहीं हुई थी तो वो डिप्लॉयमेंट नहीं गया, CI/CD पाइपलाइन। एक मिनट, तो देयर हैज टू समथिंग विच नीड्स टू बी डिप्लॉयड। समझो स्ट्रक्चर, बीइंग एबल टू ग्रास्प थिंग्स, गेट द बिगर पिक्चर, क्रिएट ब्लॉक्स, ब्रेक इट डाउन, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग जिसे कहते हैं, अराउंड दीज लाइन्स, ये एक स्किल सेट चाहिए। राइट। थर्ड स्किल सेट ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, तो बिकॉज यू आर द stakeholder ऑयल, हाँ। इंजन है ये, हाँ। 1000 पार्ट्स हैं, आप वो ऑयल हो, ऑयल नहीं होगा तो ठीक से नहीं चलेगा, ठीक है, यू आर द ऑयल, राइट। ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आपको एनालॉजी समझ गई होगी। तो कम्युनिकेशन, लाइजिंग बिटवीन, मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज कोहेसिव, मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ये स्किल्स चाहिए होंगे। एंड फोर्थ वुड बी द, फोर्थ के कुछ 3 से 4 पार्ट हो जाएंगे, विच इज प्रॉब्ली समथिंग दैट यू लुक एट, जो आपको जीडीज वगैरह में दिखती है। ये 3 चीज आपको दिखती नहीं गई, कहीं तो कोई लाइन में छोटा सा मेंशन होगा। मैं इसे छोटा कह रहा हूँ बिकॉज हमारा नजरिया उसको छोटा है। तो सॉफ्ट स्किल्स, That is the main thing actually. it's not the main thing, it's an important thing, it's a significant thing, I would say, not Right. main, everything is main, but yeah, this is oil, इंजन में तो ऑयल कहाँ डालोगे? ऑयल नहीं तो इंजन नहीं चलेगा। Right. क्यों आपको ऐसे से करना है? लेट्स कीप इट दिस ना, एक के बिना नहीं चलेगा। फोर्थ के 3 पार्ट हैं, जब जैसे मैं इंटरव्यूज वगैरह लेता हूँ, वी ट्राई टू गेज एनीबडी 3-4 ग्राउंड्स, लेट्स से आप 4 पकड़ लो। नंबर 1 टेक्निकल, वाई टेक्निकल, आस्क वाई, वाई वाला तो मेरा प्यारा मतलब फेवरेट वर्ड है मेरा, वाई। वाई टेक्निकल, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में हूँ ना, as simple as this, I am building fintech products। तो आपको So टेक आना tech- चाहिए बेसिकली। आप टेक के ज्ञाता नहीं, बट आपको टेक समझ आता है, इतना तो बेयर मिनिमम चाहिए। उसका आप जितना डीप जाएंगे आपके लिए अच्छा है, आपकी टीम के लिए अच्छा है, आपका काम जल्दी होगा। एनालिटिकल, वी स्पोक अबाउट इट, दैट माइंड स्ट्रक्चर्ड, क्रिएट, मतलब Yes. क्रिटिकल थिंकिंग, ऑल दोस थिंग्स। थर्ड डोमेन, डोमेन क्यों? अब मैं फिनटेक हूँ, फाइनेंस का मैं मार्कटेक होता तो मार्केटिंग का डोमेन चाहिए, राइट। ठीक है, मैं हार्डवेयर टेक होता तो चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग टेक होता, हर समय टेक है ना, बिकॉज तो डोमेन जो आपका डोमेन हो, आई एम टॉकिंग होलिस्टिकली एज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एज अ रोल, जो भी आपका डोमेन है। मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ किसी भी चीज को लेकर। अरे मैं जिस चीज का, अगर मैं ये बुक बना रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए बुक पेज किधर से आता है, इसका रॉ मटेरियल लकड़ी से बनता है, मिल में बनता है, डोमेन नॉलेज, बुक को बाइंड करने में कितना, कितने प्रिंटिंग प्रेस है, थिंग्स लाइक दोस। फाइनेंस में क्या, लोन कैसे होता है, कितने प्रकार के लोन होते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, थिंग्स लाइक दिस। तो डोमेन, क्योंकि आप किसी मार्केट में कुछ बना रहे हो ना, बाजार में जाके किसी कैटेगरी का सामान बेचो तो कैटेगरी तो पता होनी चाहिए सर। राइट। दैट इज व्हाट आई मीन बाय डोमेन। एंड लास्ट, इसके लिए ना बहुत फैंसी वर्ड्स यूज होते हैं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ फैंसी वर्ड्स, व्हिच इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नेगोशिएशन, ह्यूमन स्किल्स। मैं अपने जेडी में अपने एचआर को बोला, जस्ट पुट ह्यूमन स्किल्स, लेट देम इंटरप्रेट, विल सी। ह्यूमन स्किल्स मतलब क्या? ये ऐसे स्किल है जो सबके पास है, मैं लिख के देता हूँ, इस पृथ्वी पे सबके पास है, सब यूज करते हैं। आप घर पे जाते हैं, सब्जी लेते हैं, वड़ा पाव लेते हैं, बस में जाते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, सीट लेते हैं, बॉस से सैलरी मांगते हैं, बच्चे से कुछ और करते हैं। ये क्या चल रहा है? कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहीं नेगोशिएशन, कहीं कम्युनिकेशन, कहीं क्रिटिकल थिंकिंग क्यों नहीं है? आपने बोला ना, अरे फोन लेते हैं, एक मिनट, फोन इसमें क्या, ये प्रोसेसर क्या किया आपने? सब्जेक्ट के बारे में ऐसे भी बनने लगे ना, कंपैरेटिव एनालिसिस किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा, यही सब होता है ना। यस यस यस, एग्रीड। ह्यूमन स्किल्स एवरीबॉडी यूजेस इट। Right. व्हाई बोलते ना, फैंटेसाइज दोस वर्ड्स, मेक देम सो हेवी टू साउंड लाइक, ओ माय गॉड, आई HR एम likes टॉकिंग it. सम, हां, HR likes it. लेट्स नॉट गो देयर। क्योंकि आज का मार्केट ऐसा है कि एचआरस इम्पोर्टेंट हो गया HR, यस। बट नहीं, मैंने बोला ना, रिमेंबर माय वन स्मॉल लाइन व्हिच इज एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। वो एक ऐसी लाइन है ना जो आपको चांसेस सोने देगा, वरना आप किसी ना किसी से परेशान रहोगे। ये मतलब आई साउंड लाइक अ ज्ञानी बाबा, बट इट हेल्प्स मी, इट हेल्प्स मी। मेरे बगल वाले बंदे को ज्यादा सैलरी लग गई। एवरीथिंग हैज अ रीजन। उसने पता नहीं क्या किया है, आपको पूरा नहीं पता ना, हाँ, आप उसके अंदर हो गए, agreed. और आपको उससे प्रॉब्लम है तो हेड ऑन करो ना। आप उसका मतलब सुबह से रात तक देख लो क्या करता है, आप भी रेप्लिकेट फिर मांगो। यू नेवर नो उसने क्या किया है, बस यू जस्ट बोलते हैं एक आउटपुट देखा, अरे ये तो 0 पे आ जाएगा, आपको पता है उसकी टांग कटी हुई है। अब इसको बोलते हैं डेटा इज किंग। द मोमेंट यू गेट मोर एंड मोर डेटा, आपका दिमाग अपने आप कनेक्शन जोड़ने लगता है। तो जजमेंट पे कूदने की जल्दी क्या है? नहीं, वो तो एक अलग सा थॉट प्रोसेस है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत डेली का है। आपको ये एग्जांपल दिया ना, Right. अरे वो डेव टीम के साथ डिले हुआ, डेव टीम डिले हो गया, डेव टीम को बोला 1 मिनट, आपने बात की डेव टीम से, कहाँ से स्ट्रक्चर सोचा क्या? डेव टीम से मतलब पूरा टीम सो रहा था क्या? नहीं ना,
डेव टीम में कहीं कोई सर्विस में कोई एक चीज फट रही है, नहीं चल रही है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, किसने लिखा, वो बंदा कहाँ है, लास्ट इस पे कब काम हुआ था, ये आज ही क्यों पता चला, ये पहले क्यों नहीं पता चला। लेयर वन क्वेश्चन, मैं अभी तक गया ही नहीं, है इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेट्स फिगर इट आउट ना। व्हेन यू गो दिस वे, वो एम्पैथी वाला एंगल है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। आप किसके लिए बना रहे हो, एलियंस के लिए, आपके लिए बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ, उनके लिए बना रहा हूँ, सबके लिए बना रहा हूँ। जब मैं उनकी बात सुन नहीं सकता, पूरा समझ नहीं सकता, तो मैं नहीं बना सकता। मैं बनाऊंगा भी तो जैसे मैंने बनाया ना, इन जेपरेडी, वो इन जेपरेडी चला भी जाएगा। Things like that. ना इसके अंदर जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल है, अब आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, आपने देखा है आपके पीयर जो दूसरे कंपनीज में प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जी, मतलब वो क्या एजुकेशन करके आते हैं जनरली? सो वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम जस्ट थिंकिंग, ये कभी मैंने किसी ने पूछा नहीं। हाँ, अगर मैं देखूँ ना प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, अगर मतलब I'm जस्ट ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मेरे दिमाग में जा रहा है, देर आर पीपल हु आर CAs, देर आर पीपल हु आर BMS graduates, there are people who are primarily MBAs, which means they are not from STEM. Lot of them are engineers, but मैं engineers ले कह रहा हूँ because वो होता है ना डेटा नॉर्मल कर, इनपुट इतना ज्यादा आउटपुट में तो इफेक्ट दिखेगा ही। राइट राइट राइट। सो मैंने देखा है, हाँ, आई विल अग्री कि ज्यादातर मैंने स्टेम बैकग्राउंड के लोगों को देखा है, बट अगर मैं फिनटेक की बात करूँ, इस फिनटेक की जहाँ पे इंश्योरेंस, लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट हो रहा है ना, वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स मैंने देखे हैं फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड एंड कंसल्टिंग बैकग्राउंड एज वेल। वाई आई टेल यू, बिकॉज लास्ट प्रोडक्ट जो मैं बना रहा था ना, मेरा प्राइमरी स्टेक होल्डर सेल्स हेड और उसके अंदर के लोग थे। क्यों? डोमेन, सिंपल आंसर, वन वर्ड आंसर, वाई डोमेन। वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स से मैं आपको आई लर्न बाय एनालॉजी, इसके लिए बहुत एनालॉजी देता हूँ। मैं योगा करता हूँ, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ, तो योगा प्रोडक्ट के लिए आई एम द राइट गाय। मैं ही आपको बताऊंगा इंट्रिकेसीज, मैं ही बताऊंगा लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं 10 साल से सिखा रहा हूँ, मैंने 10,000 लोगों को सिखाया, 10,000 प्रॉब्लम देखी है रियल लाइफ। आई एम द गाय हु शुड डिजाइन द प्रोडक्ट, राइट? सो प्रोडक्ट मैनेजर, उसमें क्या होगा, अगर आई हैव द अदर स्किल सेट आल्सो, आई कैन टॉक टू पीपल, आई कैन अंडरस्टैंड टेक, आई कैन डू द मैनेजमेंट, आई कैन ऑल दिस, तो मैं PM बन गया, डेजिग्नेटेड ऑन पेपर, ही इज द प्रोडक्ट मैनेजर। और नहीं है, देन आई बिकम द प्रोडक्ट SME। तो मेरे उसके साथ मेरे साथ बंदा जोड़ देंगे, क्योंकि ये 2-4 दिन बाद ये समझ लेगा, ये इधर का चीज इधर ले आएगा, बाकी ये करना भी तो है सर। समझा। तो ये दोनों तरीके से लोग आते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, आई हैव सीन CA, सेल्स, कंसल्टेंट्स, वो यहाँ से आता है, और इसके पास ये 3-4 और औजार है। जनरली जो आपने प्रोडक्ट SME बोला, जैसे आप अभी डिफरेंट टीम से बात करते हो जी, फॉर एग्जांपल लीगल, तो उसमें भी SME होगा जो आपसे बात कर रहा होगा? उसमें SME नहीं, उसमें तो वर्टिकल्स है, क्लियर वर्टिकल्स है। नहीं मतलब जिसने ये सारे काम किए, जैसे रिस्क का एक प्रोजेक्ट चल रहा है फॉर एग्जांपल, या रिस्क का एक ऐप बन रहा है, ठीक है, राइट, तो उसमें उनके पर्टिकुलर टीम में भी कोई होगा जो रिस्क थोड़ा देख रहा होगा। हाँ, सो जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, करेगा। जैसे अभी मैं एक नया प्रोडक्ट पे, इट्स बीन लाइक 2-3 वीक्स मैं काम कर रहा हूँ, सो अलग ज्योग्राफी का US बेस्ड प्रोडक्ट जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं बहुत दूर हूँ उधर से, वो बोलते ना ऑर्गेनिक टच नहीं है, वो होता, या फिर मैं यहीं इसी बिल्डिंग के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा था, जैसे एंट्री एग्जिट का। हर प्रोडक्ट एक रीजन से, वाई के बिना तो प्रोडक्ट को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। सिंपल एडवाइस टू एनीबॉडी वांट्स टू वर्क इन प्रोडक्ट, आपको पता ही नहीं क्यों बन रहा है, हाथ मत लगाओ, आप अंधेरे में तीर जाओ। सो वाई हमेशा, जो आपने पूछा ना कि हर वर्टिकल में जो जिस डोमेन का प्रोडक्ट बन रहा है, जिस पर्पस के लिए बन रहा है, राइट, तो जिस बंदे ने, बोलते हैं जस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ द प्रोडक्ट, दोज आर द पीपल हु ले द फाउंडिंग स्टोन। सुनो, हमने कोई एक प्रोडक्ट बनाना है बिकॉज मार्केट में ये गैप है, या इशू है, या पेन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। व्हाई सर? बिकॉज मैंने इतना देखा है, मैंने इतना किया है, वैलिडेट दोज आल्सो। भगवान नहीं है, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, वैलिडेटिंग द अजम्पशंस, राइट? सो यस, तो जो मैंने आपको लीगल कंप्लायंस बोला ना, उसमें ऐसा था कि जब मैं अपना प्रोडक्ट बना लेता हूँ तो क्वालिटी चेक तो करना पड़ेगा ना, आई हैव टू मेक श्योर हर एंगल से वो बिकने लायक है। आई हैव टू गो टू ईच एंड एवरी दफ्तर, सर लीगली सब ओके है, अप्रूवल्स आते हैं सबके, क्योंकि वो जरूरी है ना। कंप्लायंस बोलेगा डेटा के हिसाब से सही है, टेक के हिसाब से सही है, डिजास्टर रिकवरी सही है, ये सब सही है। इन्फोसेक बोलेगा कि भाई ब्रीचेबल नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, पर्सनल डेटा है, रेगुलेटरी डिमांड्स है, वो ओके देगा, लीगल देगा, कंप्लायंस देगा, डेटा टीम देगी। तब ये सब होने का फिर मैं अंदर आके इसका स्ट्रेस टेस्टिंग करूंगा। भाई आज 100 लोग आ रहे थे, कल को अचानक 1000 आ गए तो हिट हो गया, तो क्या मेरा सिस्टम उतना रोबस्ट है? सो यू हैव टू दिस, आई वुड नॉट से, बोलते ना फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना, अप्रूवल्स लेना नहीं, देयर इज अ रीजन, वो जरूरी है। आप उस माइंडसेट से जाओ, हमारे लीगल वाले को क्या क्यों नहीं समझेगा? क्या आपको ऐसा प्रोडक्ट बना जो वो यूज नहीं करेगा तो बात अलग है, फिर वो भी तो लोन लेगा ना भाई, क्यों नहीं समझेगा? नेवर हैव दैट बायस। बट एक ऐसा चीज जो बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर कमिंग इनटू दिस स्पेस, आपको नहीं पता थी और यहाँ पे आके पता लगा, अरे यार ये भी हो रहा है,
in product management roles? ऐसा कुछ जो मुझे लगा कि नहीं होता और ऐसा आपको पता ही नहीं था, आपने बोला यहाँ पे ये भी हो रहा है, मतलब इस रोल में ये भी करना पड़ रहा है जो आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा था. आई वुड से फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड सेलिंग Okay, okay, हाँ. बिकॉज Selling your ideas to the teams. नहीं सेलिंग एवरीथिंग दैट इज इन माय माइंड कि वो कर दो. व्हाई आई टेल यू. मैं आया, मैं बोला कि हर लेयर पे एक एक छोटा सा टेक में बोल रहा हूँ कि नहीं यार 3 दिन में करके चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो जहाँ से जिसको डेमो देना है इस प्रोडक्ट के लिए हमारे CX को, जहाँ से फंडिंग आएगी वॉट एवर, उसके लिए ज़रूरी है. वो चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा इसको. लेकिन इतनी बात मैं उसे नहीं समझा सकता यार. समझाने को उनको 1.5 दिन वैसे निकल जाएंगे. ही थिंक, ही रैशनल, ही रीजन, ही ओके फाइन कर लेते हैं. सो मुझे उस वक्त उसकी भाषा में उससे ये कन्विंस करना है कि अभी ये ज़रूरी है, कर लेते हैं, मैं बताता हूँ. वो समझा. सेकंड लीगल के पास गया. मैं अपना रियल एग्जांपल बता रहा हूँ. एसेट का एक वो था गॉड, लीगल एंड कंप्लायंस. उन्होंने खटिया खड़ी कर दी थी, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं. तो मेरा ऐसा था कि देखो 2 तरीके हैं, या तो ऐसे तीर तीर चलाते हैं या तो एक साइड आके बैठ जाते हैं. फर्स्ट गेट दैट एनवायरमेंट रेडी कि सर बनाया था ना, साथ ही बनाया था, ही इज लिसनिंग नाउ. तब वही नहीं बोलेगा, बोले ये नहीं है ना, इसका रीजन इसके बोला नहीं चलेगा आज. Okay. बाय 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 बाय. सो दिस इज, ये मुझे नहीं पता था मुझे ये सब करना पड़ेगा यार. मुझे लगा मैं तो प्रोडक्ट मैनेजर, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं एक नया आईफोन बना रहा हूँ. आप भूल गए सर, आपको ये सब करना है. Okay. आपको ये सब करना है. यूजर से बात करनी है. यूजर को भी ऐसे बातें बोलते हैं, वो बोल कुछ और रहा है, उसको चाहिए कुछ और. वो सेलिंग नहीं आता, बिकॉज आपको उसको समझाना पड़ता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है. यूज करके देखो. हाँ, तो जो सेलिंग वाला पार्ट है ना, इसके बाद आपने लाइन सुनेगी ना, सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल. हर जगह लगती है. yes. वो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ लगेगा. आई थॉट इट्स अ वेरी नीश थिंग, वेरी बोलते हैं ना, जहाँ पे सेल्स ही कर रहे हैं लोग. मुझे लग रहा भाई कुछ तो बहुत इनोवेटिव, बहुत नेक्स्ट स्टीव जॉब्स ही दिख रहा है मुझे अब. बट फिर मुझे रियलाइज हुआ स्टीव जॉब्स की बुक भी पढ़ना कि ये सब भी जरूरी है. नेवर, ये आएगा. सो डेफिनेटली ये स्किल से रखना पड़ेगा. अभी सपोज कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उसको प्रोडक्ट, मेरे टीम में है प्रोडक्ट ओनर कॉमर्स बैकग्राउंड से, मेरे अंडर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स पे जैसे आप कर रहे हो. यस. कैसे जा सकता है, क्या ट्रेजेक्टरी पकड़ सकता है? एक मतलब जो मैं डायरेक्टली मुझे ध्यान आ गया, तो वो बंदा ही इज एमकॉम एंड नहीं उसका, हाँ उसका उसका अलग है. ही डिड बीएससी आईटी का, वो आईटी समहाउ उसके पास रह गया. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, 1 साल का ड्रॉप लेकर उसने कॉमर्स से मास्टर्स किया एंड वो बीपीओ में लगा. फिर वो ये ऑप्स वाले जॉब नहीं होते इंश्योरेंस के, अंडर राइटिंग में बैंक्स के, वहाँ काम करने लगा. देन ही डेवलप्ड इंटरेस्ट कि क्योंकि वो जो टूल्स यूज करता था, सीआरएम यूज करता था, तो ही हैड दैट नैक की टॉकिंग टू द अदर साइड ऑफ द गाय जिसने प्रोडक्ट बनाया कि क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा. हाँ, ये ऐसे क्यों चलता है, क्योंकि उसको डोमेन नॉलेज था, कॉमर्स वहाँ सीखा था, उसको सिस्टम समझ आते थे कि सीआरएम है, पीछे बैकएंड है, अच्छा डेटाबेस भी होता है, एक क्लिक किया तो कॉल जाती है, उसने खुद ही पढ़ा होगा, तो वहाँ से आया हुआ है. ओके. आप देखेंगे तो आप समझ रहे हो ना, आपको अगर बोलते हैं ना हल ही चलाना है, तो आपको मट्टी में चलने आना चाहिए, बुलक समझ में आना चाहिए, लकड़ी समझ में आनी. आप चाहे जहाँ से आओ सर, राइट. जो करना है उस चीज के लिए जो चाहिए वो आइडेंटिफाई कर लो. जमता है वो सीख लो, नहीं जमता है छोड़ दो. एज सिंपल एज. मुझे कल को रॉकेट ही बनाना है, अगर फाइन मैं बना सकता हूँ ना, मुझे पता हो कि रॉकेट में क्या जाता है, कैसे जाता है. इट्स सिंपल. फर्स्ट प्रिंसिपल्स, माय फेवरेट वर्ड, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक फाइनल एडवाइस, यंग जो ऑडियंस आपको दिखती है कि इंटरव्यूज के लिए आती है आपके पास, या प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल हो गया, उनको आप एक फाइनल एडवाइस क्या दे सकते हो? एडवाइस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बिकॉज मैं यूजुअली एडवाइस ना देना लेना पसंद करता हूँ. सो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, बट आई वुड रादर से मोर ऑफ एन insight and my suggestion, right? So what I've seen, this is the things I've seen. So interviews की बात करें, so recently in last 1 month I took at least like 50 interviews for a couple of positions. One thing that really came out अभी की बात, and I took interviews from across geographies, like from people from Bangalore to Mumbai, Pune, Gurgaon, Noida के लोगों में देखा. तो मुझे एक चीज़ बहुत बोलते ना उठ के सामने आई. I am a PO in insurance, I am a BA product owner, ये सब है ना, pretty much the same thing है, ठीक है, टर्मिनेटर्स अलग है. वो कहते हैं कि सर मैंने इंश्योरेंस में 3 साल काम की, मैंने SBI में, HDFC में, वॉट एवर द बिग नेम्स, उस कंपनी में एज अ दिस रोल काम किया है. ग्रेट. तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या बनाया बता दो, अरे सर वो यूजर स्टोरीज लिखता था, जीरा, कॉन्फ्लुएंस, BRD, FSD, यूजर टेस्टिंग, UAT, throwing words. If you are not able to convey communication, storytelling, आप बता नहीं सकते आसान भाषा में आपने क्या किया, you're not the guy. Again ties back to आपको 10 लोगों से बात करनी, 10 अलग जुबान में, 10 अलग लहजे में, 10 अलग कॉन्टेक्स्ट में. Everything is to
और आपके मुंह से चीजें सही तभी निकलेंगी जब यहाँ पे क्लियर हो। ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ पे क्लियर यहाँ से गलत निकले। अक्सर ये होता है कि यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड है कुछ आइडियाज, तो तभी यहाँ यहाँ से से गलत fumble निकलता होता है। है। Agreed, agreed. और यहाँ पे क्लियर करने के लिए यू हैव टू बिल्ड द फ्रेमवर्क, द प्रोसेस, कि चीजों को बिग मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर, हायरार्की। कोई बुक है क्या जो आप सजेस्ट कर सकते हो? आज तक कोई भी सब्जेक्ट को लेके कोई एक बुक आप सजेस्ट कर सकते हो गणेश? नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव I know. प्रोडक्ट मैनेजमेंट। No, आपने no. कुछ पढ़ा Product या manager is no, definitely. At least I don't know. आपको मिले तो प्लीज सजेस्ट मी, बिकॉज आई एम नहीं, आपने फ्रेमवर्क की बात की ना, दैट्स द रीजन आई एक्सप्लिसिटली आस्क्ड कि ऐसा कोई है जो एक नहीं, to answer your question, sorry to interrupt you. There's no one book as such. Like I read a lot, so वैसे भी मैं नहीं बता पाऊंगा, गलत नहीं हो गया। अभी मैं जो लास्ट बुक अभी खत्म की और ये बुक मुझे एक बहुत बड़े इंडस्ट्री वेटरन ने, लाइक इज द बिग नेम, उनके साथ हमें 20 मिनट्स का 2 सेशन मिला था। उस बीच में उन्होंने एक बुक सजेस्ट की, रीवर्क। हाँ, रीवर्क पढ़ी है मैंने। हाँ, so like people who read a lot, it's a light book, it's not a deep heavy book, it's a light book, but the message, every book has a message to it. I understand it's academic book जिसमें sections होते हैं, physics में अलग है। तो my point is, the point is trying to drive is do it। जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, जो आप सजेशन भी कहते हो, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है, छोड़ दो, आपको जो करना है वो करो। कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो आपको कोई रोक नहीं सकता। गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी खरीदनी पड़ती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, मैं बैठ के देखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन। अब कोई भी आप, अरे मैं बता रहा हूँ मैंने कितने फीचर्स है ना स्विगी जोमेटो में, आप ध्यान देना, रोज यूज करने वाले आप बता रहा हूँ, मैं और आप सब लोग यूज करते हैं ना। राइट। जोमेटो में हर 3 दिन में ना उसका लेआउट कहीं तो कुछ चेंज होता है, उसका चैट का ये ऊपर ये। कभी सोचा है आपने क्यों अचानक क्या हो गया? क्यूरियोसिटी। जब आप देखोगे, पढ़ोगे, ओह स्विगी में रिलेटेड प्रोडक्ट वहीं पे आते हो साइड में, कितना इजी हो जाता है। अरे प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं ना, किसी वर्टिकल का है ही नहीं, इट्स अ लैटरल स्किल, इट्स अ बेंड ऑफ माइंड। वो आप लेके जाओ, कहीं भी चले जाओगे। सो हैव क्यूरियोसिटी, बी एबल टू स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड, ग्रास्प थिंग इन अ ब्रॉडर स्मॉलर एवरी कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, क्लियर कम्युनिकेशन, एम्पैथी, user side of thing, being able to shift your chair every now and then, open, flexible, I'm just throwing words, something around this is what product management is। ठीक है, राइट। सो pretty much होगा। तो आप, एक सजेशन ही होगा, करना है करो। सोच लो कि मैं ऐप बना रहा हूँ, जैसे मैंने अपने एग्जांपल लिया ना, लोन ऐप, मैंने एक्सरसाइज अभी कर ली, दिस इज व्हाट कॉल्ड, हमारे यहाँ पे इसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट टर्म कहते हैं, वर्कशॉप, हेवी वर्ड, प्रोडक्ट डिस्कवरी फेज, प्रोडक्ट रोड मैप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्या हो रहा है। और हम 2 रूम में बैठ के ना, और हमेशा मार्केट में जाने के पहले वैसे, अरे सुनो ना लैंडिंग ऐप कैसे बनता है, 10 दिन जाओ कुछ नहीं मिलेगा। आपने सोचा जितना आपके पास दिमाग था सब लगा लिया, कि जब आप लगा लोगे तब आपको कोई ऐसी एक छोटी सी चीज बताएगा, आपको समझेगा अच्छा हाँ ये यहाँ बैठता है भाई इस फ्रेमवर्क में, जब बोलो स्ट्रक्चर थिंकिंग। राइट, इट्स कॉमन सेंस। अपनी मेहनत करके जाओ, ओपन रहो, सुनो, मुंह बंद आंख खुले कान खुले, सुनो, सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग, नेगोशिएट, फैंसी वर्ड्स, स्टिक टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स, बेसिक्स, बी हम्बल, अपना काम करो, थिंग्स फॉल इन प्लेस। बोलते ना, आपके पास वो स्किल है, तो अगर आप कहीं और भी काम कर रहे हो तो कोई गुजरेगा तो देखेगा ये तो अलग स्किल वाला बंदा है, इसको यहाँ लेके आते, आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप जबरदस्ती रेज्यूमे डाल के हर जगह ले लो सर, कोई नहीं लेगा सर। आप लिंक्डइन पे, मैं बताता हूँ, हम मेरे ही कंपनी के 1-2 बंदों को, जिनके पीछे गूगल, अमेजॉन और वॉलमार्ट आई गेस, 3 ऑफर उनके पीछे पड़े कि ज्वाइन कर लो। वेरी जूनियर गए, मुझसे एटलीस्ट 4 साल जूनियर। मैं अगर जाऊंगा मुझे नहीं लेगा वो, बिकॉज आई डोंट हैव दैट थिंग जो उसके पास है। उसने क्या क्या, सिंपल बताता हूँ, वो हर वीकेंड कुछ ना कुछ करता है, अतरंगी काम। एआई का अभी चल रहा है ना, एआई के मॉडल्स बनाएगा, एजेंट बनाएगा, बोलेगा अगर मेरे को फूड ऑर्डर करना है 4 ऐप से कंपेयर करना है, उसने बना लिया और लिंक्डइन पे डालता है। उसके लिए मैंने यही, उसमें आधी चीजें गलत भी लिखते हैं, उसको लोग ही बताया ऐसा नहीं ऐसा, तो सीखा ना वो। गूगल के रिक्रूटर में देखा यार हर हफ्ते कुछ तो उसको रेज्यूमे दिखाने की जरूरत नहीं है, काम दिखता है, बोलते हैं ना काम दिखता है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, थिंग्स लाइक ये चीज स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सुननी चाहिए थी। वंडरफुल, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन गौरव, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग बहुत अच्छा ओपन कॉन्वर्सेशन था। ये बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। एंड एक माइंडसेट, जो एक अपना करियर बनाने के लिए जो माइंडसेट लगता है, वो हमने आज डिस्कस किया। बहुत प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी, बट जो माइंडसेट का था, वंडरफुल। वाज आई एबल टू सेल यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ गुड रोल? हां, मैं खुद अभी इसी सेल्स की वैलिडेशन, दो तीन चीजें समझ में आ गई मुझे कि सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ, डिबेट, मेहनत बहुत है। अच्छा करोगे और हर सैटरडे संडे करोगे तो गूगल भी पीछे पड़ेगा। ठीक है, बट वंडरफुल। थैंक यू सो मच गणेश, प्लेजर।